the company has actually is a very cash-rich company, and on the top, like the biggest point that I want to tell you is it's undervalued. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो वो डबल हुए हैं. इनकी जो टोटल लाइबिलिटीज है वो क्यों इंक्रीज हो रही है? ये केवल आपको स्टॉक मार्केट में ही इस तरह के मल्टीप्लिकेशन मिल सकते हैं. 10 साल में मेरा टारगेट है इसका 500, ऑलमोस्ट लाइक आज अब से 10 गुना. Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain. Today, I have filtered a stock which has a market cap of about 5,000-6,000 crores. The P is about 7.7, very nominal single digit PE. Then the ROC is about 14%, ROE is about 13%, and this company is the sole public sector unit which has got international projects. Not only that, the company has actually is a very cash-rich company, and on the top, like the biggest point that I want to tell you is it's undervalued. The price is below 60 rupees. I'm going to give you a complete plan. How do you buy it? When do you buy it? And how long you should hold it? According to me, you should minimum hold it for 10 years if you really want good, multiplication of your wealth. I'm going to share each and every point about this stock and how the stock looks, how the beautiful breakout has come. I'm going to share each and every point, and let's understand first the fundamentals, and let's talk about the company. The company's name is 𝐻𝐿 International Limited. The 𝐻𝐿 International Limited has a market cap of about 5,351. PE is 7.7. As I told you, ROC, ROE both are extremely good. If I read about the company a little bit, 𝐻𝐿 International is actually commenced in 1976, and it diversified progressively after 1985. 76 में कंपनी बॉर्न हुई थी या उस समय बनाई गई थी, और फिर इसने प्रोग्रेसिव जो है ग्रोथ की है. तो इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. इट्स द ओनली इंडियन PSU टू मेक इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स. ये अकेली इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, PSU कंपनी है, जो कि वर्ल्ड के जो टॉप 250 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स में कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं रोड्स बनाने का, ब्रिज बनाने का, रेलवे बनाने का, उनमें टॉप 250 कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक कंपनी है ये. Then it is a sectorial leader in transportation infrastructure amongst the public sector construction companies in India, and with a specialization in execution of railway projects on a turnkey basis. अगर आप जानना चाहेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो its services include project management, consultancy, engineering, procurement and construction, public private partnership, real estate. The company also executes projects on built, operate and transfer, which is BOT, hybrid mode, which is ATM, basis by leveraging its financial strength. अगर आप बात करेंगे कि इसकी रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, तो रेलवे के कंस्ट्रक्शन से या रेलवे सेक्टर से इसके अबाउट 81% इसका जो रेवेन्यू आता है वो रेलवे से आता है. तभी इसका नाम है 𝐻𝐿. में आप देखेंगे ये बेसिकली कंपनी जब बनी थी तो वो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए बनी थी, बट बाद में इन्होंने नेशनल हाईवे पे या ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी डाइवर्सिफाई किया. फिर उसके बाद हाईवेज में करीब 18% इन लोगों का रेवेन्यू जनरेट होता है. और ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में क्या ब्रेकअप है, तो अबाउट 91-92% इज इन डोमेस्टिक रेवेन्यू दे जनरेटेड, एंड अबाउट उनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 8.5% वाज द इंटरनेशनल रेवेन्यू. So there has been a slight decrease in the income which has been generated from the international projects, and basically they have because the completion of project in South Africa and no new order except the one by Sri Lankan Airways in year 2020. Okay, so the company has its headquarters at Saket, New Delhi, and it has about 38 project offices, 4 regional offices, and customers. अगर हम बात करें कि इनके customers कौन है, तो in the past 44 years it has delivered about 128 projects in 25 countries.
and the globe, and over 390 projects in 24 states in India. अब इनकी सब्सिडरीज कौन से हैं और जॉइंट वेंचर्स किस किस के साथ हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ द मार्च 31, 2020, it has 5 wholly owned subsidiary companies, out of which 4 are special purposes vehicles, SPVs, created for the execution of projects of NHAI. It also has 50% shareholding in 20 joint ventures company and 26% shareholding in 5 joint venture companies. Now comes the question कि इनके future plans क्या है, तो it will enhance its portfolio with projects in international markets like Bangladesh, Sri Lanka, and etc. to achieve healthy profit margin offered by these projects. Now let's talk about the company's fundamentals, because as I'm telling you, we will not have this company for few months or few years. This is going to be in our portfolio for a very, very long duration. Like I'm giving you a horizon of 10 years, because if you want to multiply wealth, you need to hold such good stocks for a longer period of time. आपको अगर अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो है एक लंबे समय तक रहना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हो तो फंडामेंटल्स हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, राइट? अगर फंडामेंटल्स में वीकनेस होगी तो हो सकता है कि आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तो एक सबसे अच्छी बात है कि ये स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अब कंपनी से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोरोना इज ओवर, ऑलमोस्ट द 2 years हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग इरकॉन। अब वो 2 साल का पीरियड खत्म हो चुका है और काफी सारे इंटरनेशनल कॉरिडोर्स खुल रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाला क्वार्टर, या जो ये क्वार्टर है, इसमें अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। And company has been maintaining a healthy dividend payout of 33%. A very, very decent amount of dividend is getting paid off. Now, कुछ इनके कॉन्स भी हैं। तो पहला कॉन ये कि टैक्स रेट सीम्स लो। दूसरा, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, about 11% in last 3 years. I'm going to show you everything because कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आता है और स्टॉक जो है हॉरिजॉन्टल काफी लंबे पीरियड के लिए चलता है, बट जब ब्रेकआउट आता है तो वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है। तो अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 315 करोड़। सो नाउ लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट कि सेल्स में क्या हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, इनकी सेल्स 2019 में कुछ 1200 करोड़ थी और आज की डेट में 2200 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट लाइक 3 साल में डबल के करीब होने को आ गई है, विच इज अ गुड साइन। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो 2019 में था कुछ 120 करोड़ और आज की डेट में है इसका 200 करोड़, विच इज ऑल्सो डबल। सो व्हाट आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि देयर इज अ ग्रोथ इन द operating profit margin. अगर हम 120, 154, 155, there is a dip because of corona, then 199, then 110, 139, 153, and somewhere here to 200. So ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे जाके, तो ऐसा नहीं कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, there is a good growth, operating profit margins are growing. और अगर हम बात करते हैं कि what is happening in the sales have also shown growth in spite of a big dip in year 2020, June 2020 quarter. उसके बाद हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या हो रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा 2019 से लेके 2022 तक। इसके बाद हम ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की, तो 0.88 से ये हो गया 1.85, अगेन अ वेरी गुड साइन। नाउ कम्स द सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो 2011 में इनकी ईयरली सेल थी 3145 करोड़ एंड मार्च 22 क्वार्टर जब खत्म हुआ तो इनकी सेल्स थी 7380, ऑलमोस्ट लाइक डबल से भी ज्यादा, डबल से। और टोटल अगर हम ईयर पूरा अभी तक देखते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 9000 करोड़ की सेल्स है इनकी, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 3 times इन लास्ट 11 years। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो डबल हुए हैं। ओके, देन हम बात करते हैं ईपीएस की, तो वो ईपीएस थोड़ा पहले बहुत अच्छा होता था और एक थोड़ी सी गिरावट है ईपीएस में। उसके बाद हम बात करेंगे कि
बोरोइंग्स और रिजर्व्स में क्या हो रहा है। तो रिजर्व्स अगर हम देखते हैं तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। 2011 में 1369 करोड़ थे, 2015 में 3285 करोड़ थे, 2021 में 4309 करोड़ थे, एंड सितंबर 2022 में 4746 करोड़ है। वेरस बोरोइंग्स जो थी पहले थोड़ी कम हुई, फिर जीरो भी हुई, उसके बाद फिर थोड़ा बोरोइंग्स, अब थोड़ा सा 1430 के करीब इनकी बोरोइंग्स है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जो मुझे पॉइंट एक बहुत अट्रैक्ट करता है, बट आई एम फाइंडिंग अ लिटिल समथिंग आउट हियर कि इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे, except in between there are two places where I see negative cash flow, otherwise, and a negative cash flow here, otherwise, and there is a small negative cash flow here, but otherwise the stock has been having good amount of positive cash flow. So again, just I would like to show you कि क्या हो रहा है। So 816 करोड़ 2011 में, 602 करोड़ 2012 में, 559 करोड़ 2013 में, फिर स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर थोड़े नेगेटिव कैश फ्लो, और उसके बाद फिर एक मार्च 2022 में अच्छे खासे प्रॉफिट्स आए, और कैश नेट कैश फ्लो जो है 844 करोड़ का है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी वेरी कैश रिच कंपनी। एक पॉइंट जो मेरे को इसका डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोग अगर जानते हैं तो हेल्प करिए, आप में से आई नो अ लॉट ऑफ यू आर सीएज एंड सीएफएस, कि इनकी जो टोटल लाइबिलिटीज है वो क्यों इंक्रीज हो रही है। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि टोटल लाइबिलिटीज क्यों बढ़ रही है, और टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स जनरली तो इक्वल होते हैं, बट इज देयर अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंक्रीमेंट इन द टोटल लाइबिलिटीज? अगर है तो वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अकाउंटिंग इज नॉट माई फोर्टे। ओके, देन कम्स द डेटर डेज। अगर आप डेटर डेज देखेंगे तो पहले से बहुत कम हुए, अब केवल 34 पे आ गए हैं डेटर डेज। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, बट एक चीज आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप प्रोमोटर्स को देखते हैं ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द होल्डर, दैट मीन्स थ्रू द रेलवे, थ्रू द चेयरमैन रेलवे बोर्ड, all PSU companies owner is no one else but the President of India. So the President of India or Government of India has a holding of 73.8%. FIIs are invested in this, and a lot of FIIs are invested, about 2% stake they have, and DIIs also have reduced little bit stake. Government has slightly increased the stake, whereas the public has really increased their stake quite a bit. नाउ हम इसके प्राइस पे चलते हैं। ये है प्राइस इरकॉन इंटरनेशनल का, इरकॉन इंटरनेशनल। I'll just, what I'll do, so you will be able to see at the back इरकॉन इंटरनेशनल, that's the stock. ये जो मैंने आपके सामने लगा रखा है ये वीकली चार्ट है, दिस इज वीकली चार्ट, राइट। आई जस्ट वांट टू रिमूव इट बिकॉज ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बैकड्रॉप को, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू पीपल नाइसली। नाउ सी हियर, the stock was launched on 24th September 2018, and stock made a low of 34 and then made a low of 29, just stayed there for just a quick bounce came in. That means a very strong base has been made at 34 rupees. After it went horizontal, like there was a little spike here, and this is a weekly graph, went up, came down, and then again it remained horizontal. But last week, which is November 15th onwards जो week था, 14th onwards जो week था, the stock has given a breakout. Now stock stands on a strong resistance zone. So आप लोगों को ये नोट करना है कि ये resistance जो है, the stock has to go above this. So how do you know that the bounce is coming? आपको कैसे पता लगेगा कि ये bounce आ रहा है? तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। तो आपको क्या करना है कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा लो आप, राइट। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा लो, और यहाँ पे देखो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑलवेज रिमेंबर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने प्राइस इस जगह को वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। देखिए आपको नीचे बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स दिखाई देंगे, अगर आप नीचे देखेंगे तो जबरदस्त वॉल्यूम आपको दिखाई देंगे।
स्टॉक ने वहां से, ये वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं, स्टॉक ने इसको जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। अगर स्टॉक इसी जगह पे आता है नीचे और यहाँ पे कुछ स्टैग्नेंट होके ऊपर जाता है, मतलब इस जो आपका रेजिस्टेंस था वही आपका सपोर्ट बन जाएगा, देन यू विल फाइंड अ कंफर्मेशन, दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग ऑफ द सपोर्ट इन द डिमांड जोन। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन जो है आपका डिमांड जोन पे, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, अगर स्टॉक नीचे गिर के आएगा तो यहाँ पे बाइंग करेंगे लोग। तो हमारा फर्स्ट एंट्री कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट एंट्री तो हमारा 62 पे बनेगा, बट अगर सपोज नीचे गिरता है स्टॉक तो हम 53। okay, now let me give you the levels for buying, because levels for buying are important levels. सबसे पहले हम यहाँ पे बाय करेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग इज एट 61 और 62। यहाँ पे हम फर्स्ट लेवल बाय करेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर सपोज ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो हम नेक्स्ट अपना एक्यूमुलेशन करेंगे 53, राइट। और अगर स्टॉक और थोड़ा नीचे चला जाता है और थोड़ा यहाँ पे कहीं पे हम करेंगे बाइंग, अगर स्टॉक और थोड़ा नीचे चला जाता है तो हमको नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग विल हैपन एट दिस प्लेस एट अराउंड 50 के करीब हम और थोड़ा सा इसमें एडिशन करेंगे। बट सपोज हमको ये स्टॉक गिर जाता है, अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ 10 साल की। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट एक लाइन में ऐसे ऊपर जाएगा, मार्केट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। हो सकता है कोई जो लोग बोलने लग रहे हैं कि बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, ये होगा वो होगा, तो हो सकता है स्टॉक नीचे गिरे और 35 36 तक आपको मिले, तो वहां पे आप और एक्यूमुलेट करिएगा। ठीक है, 10 साल में मेरा टारगेट है इसका 500 का, ऑलमोस्ट लाइक आज अब से 10 गुना। और ये आपको कोई बैंक एफडी नहीं दे सकती, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता जो मैं, ये केवल आपको स्टॉक मार्केट में ही इस तरह के मल्टीप्लिकेशन मिल सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है 10 साल में इसका रहेगा 500 का टारगेट रहेगा, which is definitely not a big target, trust me. If the stock will start moving, if the buyings will happen, पहला आपका जो 1.5 ईयर का टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 का। 100 क्रॉस होने के बाद आपको अनदर 3 to 4 years में इसके टारगेट्स आपको 500 के मिलेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक की अब अर्निंग्स देखिए, अर्निंग्स के चलते जो है इसमें यहाँ पे अगर आप इसके अर्निंग्स देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि डिविडेंड दे पे प्रीटी गुड डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड अर्निंग्स जो है बेटर होती जा रही है, अर्निंग्स आर बिकमिंग बेटर, राइट। तो आपको ओवरऑल यू विल फाइंड दैट द स्टॉक इज डूइंग गुड and you will be able to understand, through the chart where to enter, where to exit. So with this I'll be signing off. इस स्टॉक को रडार पे रखिए, ये बिलो 50 रुपीज का स्टॉक है और एक वेल्थ कैन बी क्रिएटेड थ्रू दिस। सो ऑल द बेस्ट, एंड अगर इसका कोई और पॉइंट जो आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आई एम श्योर all of you will be able to contribute something for my learning, and I'm hoping that I have added something in your learning. Do join me for live trading from 10 to 11 every single day. And today we traded in LTT's call option. It went from 94.95 to about 104. People made good amount of money, and I'm hoping that you all also will make good money. So with this, I'll sign off. Take care. Bye bye. See you in the next video.